Hello dear students, myself Rajesh Kumar and today we are going to start the migration chapter for the class 12th subject geography and part number 2. Clear? So this part number 2, today we are going to start the second chapter of this part, that is the migration types and causes and consequences. So in this chapter we will discuss the meaning of the migration, then Indian diaspora. After the Indian diaspora we have to just take a look of the streams of the migration, and after the stream of migration we will study about the spatial pattern or spatial variation in migration. Then we will look to forward the next topic, cause of migration, and in the cause of migration we will study two main important causes. So first one is the push factor, second one is the pull factor, and the last topic we will cover, that is the consequences of migration. So these causes of migration and consequences of migration, these are very important topic for the board exam point of view. So today we are going to start the first topic, that is the migration. So what is the migration? So we are there is multiple people who are moving from one place to another place, so the movement of those person, that is called as the migration. So just take a look with the help of these images. So this is the first slide. Here the people are moving with their family members and with their luggage from one place to another place. So this is one image of the migration. In the second image, how the people moving with the help of the transportation from one place to another place. So we simply refer to as the migration is the movement of people from one place to another place. Clear? This is the human migration, how the people are moving from one place to another place. And why the people are moving? Because of they have some reason behind that, like a good employment, good education facility, so that's why the people are moving. Then what is the migration? So migration is the fundamentally the story of the human race from its origin to the present. Clear? Human की एक normal natural story है where the people are moving from one place to another place. People move to survive, and important point, why the people movement for the survive. There where any people, any person found the good facility for their survival, that's why the people are moving toward that place. They move in search of food. Another cause, they move in search of food. They move away from danger and death. They move toward the opportunity of life. Very important point, why the people are moving? Because of find out the opportunities for their life. Migration is tied to the human spirit which seeks adventure, pursue their dreams, and finds reason to hope even in the most adverse circumstances. So this is the migration. Clear? Then so this is the definition of the migration, you can write down. So what is the migration? Migration is the permanent or semi permanent. क्या है माइग्रेशन? इट इज़ द परमानेंट और सेमी परमानेंट शिफ्ट ऑफ पीपल. शिफ्ट ऑफ पीपल मीन मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अनदर. एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में जाना फॉर अ शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लॉन्ग टाइम पीरियड मतलब फॉर अ शॉर्ट पीरियड, और फॉर लॉन्ग पीरियड मतलब माइग्रेशन आपकी शॉर्ट पीरियड भी हो सकती है, लॉन्ग पीरियड भी हो सकती है, एंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैज बीन अंडरलाइन हियर. द फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक पर्पज, शॉर्ट एंड लॉन्ग time period, and second one is the one administrative unit to another, and there is semi permanent or permanent shift of people. Clear? So what is the migration? It is the permanent or semi permanent shift of people from one administrative unit to another for a short or long period of time for a specific purpose. So this is the definition of the migration, so you have to write down. Clear? So this is the migration, and in this migration we are simply understand it is the shift of people or migration of people or movement of people from one place to another place. So this is the chapter. So here one important story regarding this chapter, that is the Ram Babu. So राम बाबू वर्किंग एंड इंजीनियर इन भिलाई स्टील प्लांट. भिलाई, अब भिलाई कौन सी स्टेट में? इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है. भिलाई दैट इज द स्टील प्लांट कौन सी स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में. तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है वी सी. भिलाई इज इन छत्तीसगढ़. क्लियर? सो वर्किंग इन छत्तीसगढ़, वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट भोजपुर, बिहार में उसका जन्म हुआ है. एट एन अर्ली एज ऑफ 12 साल की उम्र में ही मूव टू अ नियर बाई टाउन आरा एंड कंप्लीटेड हिज इंटरमीडिएट लेवल स्टडी. अब इंटरमीडिएट लेवल स्टडी होती है 10th लेवल की स्टडी. क्लियर? मेट्रिकुलेशन, तो उसने आरा में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की. ही वेंट टू सिंदरी. सिंदरी में अब झारखंड के लिए. तो सिंदरी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सिंदरी में यहाँ पे फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा प्लांट है झारखंड में, और वहाँ पे उसको कौन सी इंजीनियरिंग में उसने डिग्री की. देन ही गॉट अ जॉब इन भिलाई स्टील प्लांट दैट इज इन द छत्तीसगढ़. क्लियर? वेयर ही इज लिविंग फॉर लास्ट 31 ईयर. पिछले 31 सालों से वहीं पे रह रहा है. हिज पेरेंट्स वर इलिटरेट एंड द ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड वॉज मेगर इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर पे टोटली डिपेंड है. तो एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर से डिपेंड है? दैट इज टोटल प्राइमरी सेक्टर. ओके. देन दे स्पेंड देयर होल लाइफ इन द विलेज. राम बाबू हैज़ 3 चिल्ड्रन हु
got their education up to the intermediate level at Bhilai, and then moved to the different places for higher education. First one study at Allahabad and Mumbai, and presently working in Delhi as a scientist. The second child got, so means this story of the Ram Babu, that is simply indicates the movement of the migration, how the Ram Babu throughout his life moves from one place to another place. एंड वन पॉइंट शुड बी नोटेड दैट कि यहाँ पे क्या होगा, देर इज शुड बी अ स्पेसिफिक रीज़न, हर माइग्रेशन के पीछे क्या होगा, एक रीज़न होगा, स्पेसिफिक रीज़न होगा, और उसका चाहे वो माइग्रेशन शॉर्ट टाइम पीरियड की होगी चाहे लॉन्ग टाइम पीरियड की होगी, क्लियर। और क्या होगी, फ्रॉम वन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अनदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगी। तो मीन्स यहाँ पे राम बाबू की इस स्टोरी के थ्रू किस चीज़ को डिपिक्ट किया गया है, दैट इज़ द माइग्रेशन, क्लियर। So this is the firstly migration. So migration already we have discussed what is the migration, movement of people from one place to another place. And there is one important term, that is the Indian diaspora. So firstly understand what is the term diaspora stands for. So diaspora, what is the diaspora? Diaspora refers to the movement, migration or scattering of people away from an established or ancestral homeland where their ancestors were lived. Means डायस्पोरा इज अ लार्जर टर्म, ठीक है, अंडरस्टैंड करना इसको ढंग से, लार्जर टर्म है, लार्जेस्ट टर्म है, वाइल द माइग्रेशन इज द स्मॉल टर्म, क्लियर। एक लार्जर एस्पेक्ट है किसका, डायस्पोरा का, माइग्रेशन दैट इज अ स्मॉलर एस्पेक्ट। अब माइग्रेशन वर्क्स अंडर द डायस्पोरा, अंडरस्टैंड पॉइंट, माइग्रेशन वर्क्स अंडर द डायस्पोरा एंड डायस्पोरा रेफर्स टू अ कम्युनिटी मूवमेंट। किसकी मूवमेंट है, कम्युनिटी की, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी, व्हेन द कम्युनिटी मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और यहाँ पे वन प्लेस टू अनदर प्लेस में क्या आएगा, व्हेन द कम्युनिटी मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज द डायस्पोरा, क्लियर। सो दिस इज द डायस्पोरा एंड इन दिस व्हाट इज द डायस्पोरा। सो डायस्पोरा the word is this is a Greek language word which mean to disperse. Disperse means scatter होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना. So diaspora simply refers to the displacement of a community culture into another geographical area और culture, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कल्चर को जब वो मूव करता है टू अनदर कंट्री और अनदर प्लेस, व्हेन दे मिक्स विद अनदर ज्योग्राफिकल एरिया और कल्चर, सो this is called as the diaspora. So diaspora is the movement, migration, settlement और scattering of people away from their homeland. जब वो अपने homeland को छोड़ के किसी दूसरे place के ऊपर settle होते हैं, a larger amount of people, larger number of people, that is called as the diaspora. So in the migration the number of the people may be 1 and to 10, that is called as the 10 number. But in diaspora a full community, full linguistic community, religious community, clear. So that is the difference between the diaspora and the migration. Now the next one is the Indian diaspora, and Indian diaspora has the 3 period. क्लियर, इंडियन डायस्पोरा में कितने पीरियड हैं, 3 पीरियड हैं, या इनको हम फेजेस भी बोल सकते हैं ऑफ इंडियन डायस्पोरा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो फर्स्ट दैट इज द फर्स्ट फेज और द फर्स्ट पीरियड, क्लियर, फर्स्ट पीरियड ऑफ इंडियन डायस्पोरा. अब फर्स्ट पीरियड में क्या हुआ, इट इज़ द ब्रिटिश पीरियड. ये ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे मीन्स आपका 1800 टू 1800 से ये स्टार्ट हुआ, 18th सेंचुरी से आप ये मान के चलो 19th सेंचुरी तक, ठीक है, 1800 से लेके 1920-25 तक, क्लियर. उसके बाद इसमें क्या है, ब्रिटिश टाइम पीरियड है, और इसमें मिलियन ऑफ लेबरर्स वर सेंट टू. अब कौन से पीपल मूव हुए, दैट फर्स्ट वन इज द लेबरर्स, क्लियर. तो कौन से मूव हुए, लेबरर्स मूव किए गए. लेबरर मूव्स हुए कौन से कंट्री में, मॉरिशियस, देन कैरिबियन आइलैंड्स, त्रिनिदाद, एंड उसके बाद ग्वाना एंड इंग्लैंड, फिजी, साउथ अफ्रीका, ब्रिटिश. और कहाँ से मूव किए गए, उत्तर प्रदेश से मूव किए गए और बिहार से, एंड रूरल एरियाज टूवर्ड आर कंट्री, क्लियर. तो वहाँ से ये लेबरल जो है वो मूव किए गए. देन अब वाई दीज पीपल हैज़ बीन मूव्ड, बिकॉज ऑफ स्लेव, एज अ slave and laborer to do the work of their homes, industries in the European areas and the African areas, clear. And this one is the important point is that this one is the forced migration. इनको forcefully, कौन सी माइग्रेशन थी ये, forced migration means the people who are migrating from one place to another place that are not willing, clear, they are forcefully moved from one place to another place by the Britishers, clear. So that is the forced migration, and this migration, this phase or this migration is a time bound contract. time bound contract means like 2 years के लिए, 3 years के लिए, 1 years के लिए, 6 month के लिए. तो वो time bound contract था, and this is also known as गिरमिट एक्ट. क्या बोलते थे इसको, गिरमिट
एक्ट इंपॉर्टेंट टर्म है गिरमिट एक्ट. गिरमिट एक्ट मीन्स टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट एंड इन द गिरमिट एक्ट देर इज अ फिक्स पीरियड बिटवीन द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन द पीपल हु आर मूविंग. सो जो लोग वहाँ से उनको फोर्सफुली मूव किया करवाया जा रहा है तो वहाँ पे उनका एक फिक्स टाइम पीरियड होता था और उसी फिक्स टाइम पीरियड को क्या बोलते थे, गिरमिट एक्ट बोलते थे. एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द इंडियन एमिग्रेशन एक्ट. क्लियर. सो दिस वन इज द फर्स्ट ब्रिटिश पीरियड जो है फर्स्ट डायस्पोरा की फेज है. इसमें क्या है, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पीरियड पे हुए लेबरर स्लेब यहाँ से मूव हुए कौन से कंट्री में, मॉरिशियस, कैरिबियन आइलैंड्स, त्रिनिदाद, देन साउथ अफ्रीका, ब्रिटिश एंड कौन कौन से एरिया से मूव हुए, उत्तर प्रदेश और बिहार से. और ये सारे के सारे फोर्सफुली माइग्रेंट्स थे और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वो था टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट और इसी को बोलते थे गिरमिट एक्ट और इसी गिरमिट एक्ट को क्या बोलते थे, इंडियन एमिग्रेशन एक्ट. उसके बाद आती है सेकेंड वेव. क्लियर. सेकेंड वेव स्टार्ट होती है और सेकेंड वेव में द फर्स्ट वन माइग्रेंट वेंटर्ड एट इनटू नेबरिंग कंट्रीज. तो सबसे पहले जो माइग्रेंट थे सेकंड वेव में वो मूव कहाँ पे हुए, नेबरिंग कंट्रीज में मूव हुए. फर्स्ट पॉइंट. क्लियर. देन सेकंड पॉइंट कौन से मूव हुए, दैट इज प्रोफेशनल, आर्टिशंस, देन ट्रेडर्स, देन फैक्ट्री वर्कर्स. वाई दे आर मूविंग, वाई दे वर मूव्ड, बिकॉज ऑफ गुड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. और कहाँ पे मूव किए गए ये, मलेशिया मूव हुए, देन सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनई, अफ्रीकन कंट्रीज़. तो इन जगह पे ये मूव हुए. सो दीज आर द सेकेंड वेव ऑफ डायस्पोरा एंड दीज आर skilled and semi skilled labor and they are not forcefully all these people who were moving in the second wave they related to the billingness migration. और ये कौन से टाइम पीरियड में हुई, 1947 टू 1970 या 80 तक. क्लियर. इस टाइम पीरियड में जितनी भी माइग्रेशन हुई वो सारी की सारी कौन सी हुई, सेकंड वेव डायस्पोरा हुई. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, फर्स्ट वन कौन से थे, नेबरिंग कंट्री में मूव किए गए. कौन कौन से थे ये पीपल, प्रोफेशनल थे, आर्टिसन थे, ट्रेडर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे और किस तरह के थे, स्किल्ड थे और सेमी स्किल्ड थे. क्लियर है. कौन कौन से कंट्री में मूव किए, त्रिनिदाद हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया, ब्रूनई, अफ्रीकन कंट्रीज में मूव किए. एंड दे आर बिलिंगनेस माइग्रेशन. क्लियर. सो दिस वन इज द सेकंड. और कौन से टाइम पीरियड में, 1947 टू 1970 या 80 तक. क्लियर. सो दिस वन इज द सेकंड वेव. देन थर्ड वेव ऑफ माइग्रेंट दैट इज कंप्राइज फ्रॉम 1970 ऑनवर्ड्स. क्लियर. 1970 के बाद जितनी भी चली वो थर्ड वेव आई. अब इसमें क्या हुए, इसमें भी पीपल मूव किए. क्लियर. और मूव में कौन से कंट्री में मूव किए, दे मूव टूवर्ड द डेवलप्ड कंट्री. कौन से कंट्री में मूव किया, डेवलप्ड कंट्री में मूव किया. अब कौन से पीपल मूव किए, दे आर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, देन मैनेजमेंट कंसल्टर्स, financial expert, media persons, then other person like doctors, teachers, means those that is the very good brains, youthful people, those have skilled values, skilled development, skilled, they are totally skilled person. They moved from our country to अनदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और कौन से कंट्री में मूव किए, डेवलप्ड कंट्रीज में मूव किए फ्रॉम 1970 ऑनवर्ड्स. then mostly the educated people and the knowledge oriented based people they move toward the powerful countries, they are the developed countries. So this one is the third wave of the Indian diaspora and this third wave is called as the drain brain. मतलब क्या है, हमारे कंट्री का ब्रेन और कहाँ पे सर्व कर रहा है जाके अनदर कंट्री को, तो हमारे कंट्री को तो लॉस हो रहा है. एंड वाई दिस पीपल आर मूविंग, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग गुड फैसिलिटी इन आवर कंट्री, दैट्स वाई दे आर मूविंग टूवर्ड द अनदर कंट्रीज. क्लियर. एंड टुडे इफ वी वांट टू इफ वी सीइंग इन द वर्ल्ड लेवल दैट मोस्ट ऑफ द CEO ऑफ द वर्ल्ड फेमस कंट्रीज, famous MNCs, they are totally belong to our country. So this is the brain drain theory which is given by the Dada Bhai Nauroji. Clear. So this one is the Indian diaspora. The next one is the migration. So simply we have discussed what is the migration. So already we know the first migration data has been or first census of India that has been conducted in 1872, but that was not a complete census. And in 1881 the fully complete census has been carried out by the Britisher people. So the first census of India conducted in 1881, the data recorded on the basis of, और उस टाइम जो माइग्रेशन का डाटा था वो प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर रिकॉर्डेड होता था. एंड इन 1961 के बाद इस माइग्रेशन के डाटा में चेंजेस जो हैं वो मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस की गई और वहाँ पे दो तरह के कंपोनेंट माइग्रेशन के ऐड होने लगे. फर्स्ट वन इज द प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेकंड वन इज द ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस. अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का क्या हुआ, ये पर्सन ए है, इसका इस पॉइंट पे क्या हुआ, बर्थ हुआ. सो दिस इज कॉल्ड एज द प्लेस ऑफ बर्थ. क्लियर. व्हेन दैट पर्सन डज नॉट फाइंड द
basic facility from his place of birth, then he moved toward the another place, and this place is called as the place of residence, जहाँ पे वो अब रह रहा है. क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज प्लेस ऑफ बर्थ एंड दिस इज कॉल्ड एज द प्लेस ऑफ रेजिडेंस. सो 1881 में जो माइग्रेशन का डाटा कैलकुलेट होता था वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे कैलकुलेट होता था, प्लेस ऑफ बर्थ. बट 1961 में इसमें मॉडिफिकेशन किया गया और 1961 के बाद इसमें एक और एस्पेक्ट को जोड़ा गया, प्लेस ऑफ रेजिडेंस. मतलब एट प्रेजेंट वो पर्सन कहाँ पे रिजाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द प्लेस ऑफ रेजिडेंस. क्लियर. तो इस तरह से वो क्या हुआ, माइग्रेशन में डाटा में चेंजेस आने लगी. इन द सेंसेस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर आस्क्ड. तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पुट करते हैं माइग्रेशन डाटा में. देन द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज इन्यूमरेटेड इन टू प्लेस. द फर्स्ट वन इज द प्लेस ऑफ बर्थ. फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन की इन्यूमरेशन मीन्स काउंटिंग. जब उसकी काउंटिंग होती है तो सबसे पहले कौन सी एस्पेक्ट देखी जाती है, प्लेस ऑफ बर्थ के लिए. तो प्लेस ऑफ बर्थ, the place of birth, if the place of birth is different from the place of enumeration. for example, किसी पर्सन का place of birth A है बट उसको काउंट किया गया है place of B में, तो ये हो गया place of enumeration एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी हुआ और ये हुआ प्लेस ऑफ बर्थ हुआ. जब ये दोनों डिफरेंट होंगे, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द लाइफ टाइम माइग्रेंट. मतलब वो पर्सन मूव कर रहा है. इफ द प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन इज डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लाइफ टाइम माइग्रेंट. क्लियर. सेकंड है प्लेस ऑफ रेजिडेंस. इफ द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन. फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन का प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन ये है, दैट इज ए पॉइंट, और ये इन्यूमरेशन है यहाँ पे, उसको पिछली बार जो है लास्ट टाइम में इसको यहाँ पे इन्यूमरेट किया गया. क्लियर. तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अब फॉर एग्जांपल ये उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, अब प्लेस ऑफ रेजिडेंस उसका हो गया बी. अब जब प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन, अब ये इन्यूमरेशन प्लेस हुआ और ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस हुआ, जब ये दोनों डिफरेंट होंगे दैट इज कॉल्ड एज द नोन एज द माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस. क्लियर. सो दिस वन इज द प्लेस ऑफ माइग्रेशन. द नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट टर्म इज रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन. सो बेसिकली इंडिया में हमारे 4 तरह की स्ट्रीम है. द फर्स्ट वन रूरल टू रूरल. क्लियर. उसका रूरल टू अर्बन. पहले इन दोनों को समझ लेते हैं. रूरल टू रूरल क्या है, फॉर एग्जांपल किसी की जॉब लगती है एक गांव से दूसरे गांव में, तो जो वो पर्सन मूव करता है दोनों तरफ, तो दैट इज कॉल्ड एज द रूरल टू रूरल. किसी की मैरिज हो जाती है एक गांव से दूसरे गांव में, सो दैट माइग्रेशन इज कॉल्ड एज रूरल टू रूरल माइग्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को दूसरे गाँव में कोई काम है, व्हेन द पर्सन इज मूविंग टूवर्ड दैट विलेज इज कॉल्ड एज रूरल टू रूरल. सेकंड वन रूरल टू अर्बन. अब वाई द पीपल आर मूविंग टू रूरल टू अर्बन, सो व्हेन द पीपल आर मूविंग रूरल टू अर्बन एरियाज, दैट इज कॉल्ड एज अर्बनाइजेशन. क्लियर. दैट इज कॉल्ड एज अर्बनाइजेशन. और इंडिया में सबसे प्रेवलेंट माइग्रेशन जो है दैट इज रूरल टू अर्बन. अब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग क्यों मूव करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए. क्लियर. एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए, गुड ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़. सो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो है बेसिकली पीपल कम टू अर्बन एरियाज फॉर फुलफिलिंग देयर डिज़ायर, एम्प्लॉयमेंट, रिमूव द पॉवर्टी, गुड लिविंग कंडीशन, बेटर फैसिलिटीज़. क्लियर. गुड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन. क्लियर. सो फॉर दीज पॉइंट्स पीपल आर मूविंग टू रूरल टू अर्बन एरिया. पॉइंट नंबर 1, इन द रूरल एरिया देयर आर सम नेगेटिव पॉइंट. नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे, वहाँ पे पॉवर्टी होगी, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, वहाँ पे लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी होगी, एंड पीपल आर मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया. तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या बन गए, ये बन गए पुश फैक्टर. कौन से फैक्टर बने, पुश फैक्टर. क्लियर. तो पुश फैक्टर की वजह से लोग कहाँ से मूव हुए, रूरल टू अर्बन एरिया. और अर्बन एरिया में क्या होंगे, अर्बन एरिया में होंगे पुल फैक्टर. क्लियर. अर्बन एरिया में क्या होंगे, पुल फैक्टर होंगे. पुल फैक्टर लाइक गुड ट्रांसपोर्टेशन, गुड कम्युनिकेशन, गुड हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, गुड development of resources, employment, industries, basic facility of life is there. That's why people are moving from rural to urban area. उसके बाद थर्ड आती है, थर्ड माइग्रेशन स्ट्रीम है अर्बन टू अर्बन. अब अर्बन टू अर्बन क्यों मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल सेम केस, बेटर फैसिलिटी होगी. फॉर एग्जांपल कोई पर्सन रोहतक से मूव कर गया दिल्ली, रोहतक से मूव किया दिल्ली. अब दोनों ही क्या है, ये भी अर्बन एरिया है, दिल्ली भी अर्बन एरिया. हो सकता है रोहतक से ज़्यादा बेटर फैसिलिटी हो दिल्ली में, दिल्ली के बाद वो मूव कर गया मुंबई में, बेटर फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, good education standard, good health standard, life standard. that's why people are moving from one place to another place. marriages भी कॉज होगा, जॉब्स भी कॉज होंगी. उसके बाद है अर्बन टू रूरल. अब अर्बन से लोग रूरल की तरफ क्यों आएंगे, ये भी स्ट्रीम है, ये फोर्थ स्ट्रीम है माइग्रेशन स्ट्रीम की. अब अर्बन एरिया से फॉर एग्जांपल इसके लिए पहला पॉइंट तो आ जाएगा मैरिजेज. मान लो बहुत रेयर केस में किसी अर्बन फीमेल या फीमेल की मैरिज हो जाती है रूरल एरिया में, तो वो
माइग्रेशन का कॉज हो गया अर्बन टू रूरल, किसी की जॉब लग जाती है रूरल एरिया में, देन ही हैज़ टू मूव। कोई बेटर पीस के लिए जाना चाहता है, क्लियर, ओवर क्राउडिंग से परेशान हो गया कोई, तो वो रूरल एरिया में जाना चाहता है, क्लियर, फॉर पीस, क्लियर, फॉर सिक्योरिटी एंड फ्रॉम ओवरकम फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ द अर्बन हैप्पैज़र्ड्स ग्रोथ। जो अर्बन हैप्पैज़र्ड ग्रोथ से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, उनसे रिलैक्स करने के लिए सम पीपल आर मूविंग फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया, क्लियर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सब अर्बनाइजेशन। सब अर्बनाइजेशन, लास्ट चैप्टर में हमने ये टर्म पढ़ी है, व्हेन पीपल आर मूविंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी टू द आउटर पार्ट ऑफ द सिटी, सो दैट इज कॉल्ड एज द अर्बन टू रूरल, क्लियर। तो यहाँ भी हमारे बेसिकली हमारे पास 4 मेन क्या है, 4 आर द माइग्रेशन स्ट्रीम है। फर्स्ट वन रूरल टू रूरल, सेकंड वन रूरल टू अर्बन, थर्ड वन अर्बन टू अर्बन एंड फोर्थ वन अर्बन टू रूरल। तो ये हमने सारी की सारी स्टडी कर ली है, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल एंड रूरल टू रूरल, क्लियर। उसके बाद है स्पेशल पैटर्न ऑफ माइग्रेशन। अब स्पेशल पैटर्न ऑफ माइग्रेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि स्पेस के ऊपर, हमारे कंट्री के ऊपर किस तरह से माइग्रेशन इज गोइंग ऑन। तो माइग्रेशन जो है, देखिए सिंपल सी टर्म है माइग्रेशन में, माइग्रेशन टर्म है वन पॉइंट माइग्रेशन। तो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल। अब माइग्रेशन में एक रीज़न है, फॉर एग्जांपल ए से पर्सन मूव होके चले गए बी पे, क्लियर। तो जो ए के लिए था इसको हम बोलेंगे यहाँ से आउट माइग्रेंट, क्या बोलेंगे, आउट माइग्रेंट, और बी में उसको क्या बोलेंगे, इन माइग्रेंट, क्लियर, इन माइग्रेंट। और जहाँ पे आउट माइग्रेंट में जो प्रोसेस हुई उसको क्या बोलेंगे, आउट माइग्रेशन, और इन माइग्रेंट में जो प्रोसेस हुई उसको क्या बोलेंगे, इन माइग्रेशन। तो स्पेशल वेरिएशन में एरियाज ऑफ हाईएस्ट माइग्रेशन, हाईएस्ट माइग्रेशन पहला पॉइंट, हाईएस्ट माइग्रेशन जैसे हमने डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन का किया, उसके बाद मीडियम, ठीक है, एंड थर्ड वन इज द लोएस्ट। अब सबसे ज़्यादा माइग्रेशन कौन से एरिया से होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे पहले हाईएस्ट में अब हम डिस्कस करेंगे, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो है इस वक्त हमारा उत्तर प्रदेश, और हाईएस्ट जो है यूपी से माइग्रेशन हो रही है, यानी यूपी क्या बन गया, आउट माइग्रेंट्स, क्लियर, आउट माइग्रेंट्स। बिहार, और रेसिपेंट कहाँ पे है, महाराष्ट्र हो गए रेसिपेंट में, महाराष्ट्र, दिल्ली, देन आपका कर्नाटका रीजन, क्लियर, पंजाब रीजन, ये रेसिपेंट है। उसके बाद मीडियम में आपके आ जाएंगे ये रीजन, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K रीजन, और लोएस्ट में आ जाएंगे माउंटेनियस एरिया, क्लियर। सो दीज आर द मेजर migration, special variation in the migrations, clear. So this is for today's lecture. Tomorrow or in the next lecture we will discuss the causes of migration, in which we will study the push and pull factor, then consequences of migration. So I hope you like this video. Thank you.